Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9. It's a time to study Pakistan Studies, chapter number 2, the Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. Today we will read Cabinet Mission Plan 1946. तो कैबिनेट मिशन प्लान को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैबिनेट असल में होता क्या है। Cabinet is the committee of senior ministers responsible for controlling government policy, यानी हुकूमती पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार सीनियर वुज़रा की कमेटी को काबीना कहते हैं। While a group of people sent by a government to represent it in a foreign country is called mission, यानी लोगों का एक ग्रुप जो हुकूमत की तरफ से बैरूने मुल्क उसकी नुमाइंदगी के लिए भेजा जाता है उसे मिशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन 1946 ये एक ऐसी पेशरफ्त का साल था क्योंकि लेबर पार्टी ने बरतानवी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी और ये पार्टी जल्द अज जल्द तमाम इक़्तिदार मकामी हिंदुस्तानियों को मुंतकिल करना चाहती थी। इसीलिए इस कमीशन ने एक फ्रेमवर्क मुरतब किया जिसमें मुस्लिम और हिंदू अक्सरियती रियासतों की तकसीम का खाका पेश किया गया था। So let's start our reading. The Labour Party came into power in England in 1945. The British government sent a cabinet mission to India. Due to the rising political restlessness in the subcontinent, the mission consisted of 3 members. This mission had 2 fundamental objectives. First, to determine the constitutional position and the form of government, and secondly, to reduce the hatred between the Hindus and the Muslims and keep them together in the united India. But the elections proved that this could not be done. 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत आई। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। इस मिशन के 2 बुनियादी मकासद थे। एक, हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाजे कर दी जाए, यानी हिंदुस्तान में आइन किस तरह का होगा, वफाकी होगा या सूबाई होगा। और दूसरी, मुसलमानों और हिंदुओं में नफरतों की हिलीज कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की जाए, यानी मुसलमानों और हिंदुओं में नफरतों को कम करना इसका दूसरा मकसद था। और ये मकसद भी था कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम ना किया जाए, इकट्ठा ही रखा जाए। लेकिन इलेक्शंस ने, इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। The members of the cabinet mission met with the leaders of all the political parties but failed to achieve the desirable results. So these members announced a plan on 16th May 1946 with following salient features. काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। 16 मई 1946 को इन अरकान ने एक मंसूबे का ऐलान किया जिसके नुमाया पहलू दर्ज झेल हैं। नंबर 1, A union would be established in the subcontinent which would be responsible for the foreign affairs, defense, communications and transportation. Mean, बरे सगीर में एक यूनियन कायम की जाएगी जो अमूरे हारजा, दिफा और मवासलात की जिम्मेदार होगी। नंबर 2, All powers except central affairs would be given to the provinces. मरकजी अमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात सूबों को दिए जाएंगे। नंबर 3, The provinces would have the mandate to form mutual groups and every group could frame its own constitution. सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना ले और हर ग्रुप अपना दस्तूर मुरतब करे। नंबर 4, The provinces would have the authority to demand amendments in the constitution through majority opinion after every 10 years. हर 10 साल के बाद सूबों को इख्तियार होगा कि वो कसरत सराय से आइन में तब्दीली का मुतालबा कर सकें। स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 accepted by Congress but first accepted, later rejected by the Muslim League. Because Quaid-e-Azam strongly opposed the cabinet mission's proposal under which the British wanted to hand over rule to Congress. Quaid-e-Azam made all the conspiracies of the Hindus and the British unsuccessful. The cabinet mission eventually had to admit that the Muslim League could not be ignored in any way. स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन प्लान को पहले कांग्रेस ने माना था
और मुस्लिम लीग ने पहले माना और फिर उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कबीना मिशन की तजवीज़, जिसके तहत अंग्रेज कांग्रेस को हुकूमत देना चाहते थे, यानी हिंदुओं की जमात को हुकूमत देना चाहते थे, डट कर मुकाबला किया और हिंदुओं की हर चाल को नाकाम बना दिया। इस मिशन को आखिरकार तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को किसी तौर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। That's why on 16th August 1946, Muslim League decided to observe Yom-e-Rast Iqdam, Direct Action Day, at the national level because the Hindus were dreaming of ruling the subcontinent after the departure of the British. On that day, the processions were held everywhere in which the evil designs of the Congress were exposed. इसीलिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर योम-ए-रास्त इक़दाम मनाने का फैसला किया क्योंकि हिंदू अंग्रेजों के बाद बरे सगीर पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे। इस रोज बरे सगीर में जगह जगह जलसे किए गए जिसमें कांग्रेस के अज़ाइम को बेनकाब किया गया। Students, do you know Direct Action Day, also known as the 1946 Calcutta killings, was a day of nationwide communal riots. It led to large-scale violence between Muslims and Hindus in the city of Calcutta in the Bengal province of British India. डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे 1946 कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है, मुल्क गिर फिरका वाराना फसादात का दिन था। यह बरतानवी हिंदुस्तान के बंगाल सूबे के शहर कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बड़े पैमाने पर तशद्दुद का बाइस बना था। Let's move ahead to know the next step of independence movement, which was interim government. Students, what is interim government? interim government क्या है? इसे उर्दू में अबूरी हुकूमत कहते हैं और इसका मायने शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी होता है। ये एक आर्जी हुकूमत होती है जिसे हंगामी हुकूमत भी कहा जाता है। एक हंगामी हुकूमती अथॉरिटी है जो आम तौर पर नई कौमों के मामलात में या पिछली गवर्निंग इंतजामिया के खात्मे के बाद सियासी मुंतकिली को मुनज़्ज़म करने के लिए कायम की जाती है। So students, in September 1946, the Viceroy asked the Congress to form interim government. Under those circumstances, the Muslim League decided to join the interim government rather than leaving the field open and nominated 5 League members, which included Liaquat Ali Khan, I.I. Chandigarh, Sardar Abdul Rab Nishtar, Raja Gazamfar Ali Khan, and minority member Jogandar Nath Mandal. सितंबर 1946 में वॉइसरॉय ने कांग्रेस को अबूरी हुकूमत कायम करने को कहा। इन हालात में मुस्लिम लीग ने मैदान हाली छोड़ने की बजाय अबूरी हुकूमत में शामिल होने का इरादा किया और अबूरी हुकूमत के लिए 5 मुस्लिम लीगी अरकान के नाम तजवीज़ किए, जिनमें लियाकत अली खान, I.I. चंद्रीगढ़, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजम्फर अली खान और अक़लियती रुकन जोगंदर नाथ मंडल शामिल थे। But the interim government could not perform effectively due to differences between the Congress and the Muslim League. Under these circumstances, the demand of the Muslims for a separate homeland under two-nation theory further strengthened. Therefore, the British Prime Minister announced on 20th February 1947 that the government would hand over the power to the elected representative by June 1948. Thus, the establishment of Pakistan drew closer. अबूरी हुकूमत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इख्तलाफात की वजह से मौसर अंदाज में काम ना कर पाई। इन हालात में मुस्लिम लीग का 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर अलग वतन का मुतालबा जोर पकड़ता गया और वजीर आजम बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि हुकूमत जून 1948 तक इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देगी। इस तरह पाकिस्तान का क़याम करीब से करीब तक होता चला गया। स्टूडेंट्स, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद मुमकिन ना हो पाया और इसी तरह दीगर तमाम ऑप्शंस को खत्म करने के बाद आखिरकार सिर्फ एक ही अमली तजवीज़ रह गई थी और वो थी बड़े सगीर पाको हिंद की तकसीम, जिसके मुताबिक 3 जून 1947 का प्लान पेश किया गया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। On 3rd June 1947, the plan for the partition of the subcontinent was announced, whereby the power was to be handed over to the representatives of the India by 14th August 1947. The 3rd June 1947 plan also had a clause that separate sessions of the Muslims and the Hindu members of the assemblies of Punjab and Bengal would be held. It was also decided that the provinces would be partitioned and a commission would decide the new boundaries of province.
3 जून 1947 को बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया गया, जिसकी रूह से इस बात का फैसला किया गया कि 14 अगस्त 1947 तक इक्तदार हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 के मंसूबे में एक शिक ये भी थी कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के हिंदू और मुसलमान अरकान के अलग अलग इजलास होंगे। ये भी फैसला किया गया कि इन सूबों को तकसीम कर दिया जाए और सूबों की हदबंदी एक कमीशन करेगा। It was also decided that Sindh Assembly would decide the future status of the province through the majority vote. The people of NWFP and Sylhet would decide through plebiscite whether to join Pakistan or India, and the Shahi Jirga would decide the future of Balochistan. The Sindh Assembly voted for Pakistan. सिंध असम्बली कसरत राय से सूबे के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। सूबा सरहद और सलहट के अवाम पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का फैसला इस्तिस्वाबे राय के जरिए करेंगे, यानी वोटिंग के जरिए करेंगे, जबकि बलूचिस्तान का फैसला शाही जिरगा करेगा। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था। Implementation of the Indian Independence Bill 1947 was the last step of our independence movement. To execute the 3rd June plan, the British government passed the Indian Independence Bill on 16th July 1947, whereby India was divided into two states, Pakistan and India. 3 जून के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर किया और हिंदुस्तान को 2 रियासतों पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया। रेडक्लिफ अवार्ड। स्टूडेंट्स, रेडक्लिफ अवार्ड एक सरकारी मंसूबे का नतीजा था जिसका ऐलान लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को 2 अलग खुद मुख्तार रियासतों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम करने के बारे में किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने जंगे अजीम के दौरान बरतानिया की वजारत इत्तलात के तौर पर काम किया था। So let's start our reading. For the demarcation of the boundaries of Punjab and Bengal, 2 boundary commissions were constituted under the joint chairmanship of Sir Cyril Radcliffe. For the demarcation of Punjab, Mr. Justice Muhammad Munir and Mr. Justice Deen Muhammad represented Pakistan, while Justice Meher Chand Mahajan and Mr. Justice Teja Singh represented India. All those gentlemen were judges of the High Court. पंजाब और बंगाल के इलाकों की तकसीम का फैसला होने लगा तो बरतानवी हुकूमत ने सर सिरिल रेडक्लिफ की सरबराही में एक हदबंदी कमीशन कायम किया, जिसमें पंजाब की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मोहम्मद मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, जबकि भारत के नुमाइंदे जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह थे। ये सब हजरात हाई कोर्ट के जज थे। For the demarcation of Bengal, Mr. Justice Abu Saleh Muhammad Akram and Mr. Justice S.A. Rahman represented Pakistan, while Mr. Justice C.C. Baswas and Mr. Justice B.K. Mukherjee represented India. At the time of partition, the Viceroy and his staff connived with the Congress and demarcated the boundary according to their wishes and used Radcliffe as a rubber stamp. बंगाल की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम और एस ए रहमान, जबकि भारत की तरफ से सी बिस्वास और बी के मुखर्जी थे। तकसीम के वक्त वायसरॉय और उनके अमला ने कांग्रेस से गठजोड़ करके हदबंदी का फैसला कर लिया और रेडक्लिफ को दस्तखत करने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। Radcliffe Award included many Muslim majority areas in India and deprived Pakistan from the waters of Satluj, Beas and Ravi. Furthermore, the frontier of India were extended up to Kashmir. India captured Kashmir through Gurdasapur and created the Kashmir problem, which is still unresolved. The defective planning by Radcliffe created many problems for Pakistan. तकसीम में रेडक्लिफ ने मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके भारत में शामिल करके एक तरफ पाकिस्तान को सतलुज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया, जबकि दूसरी तरफ भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया। गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कश्मीर का मसला पैदा हुआ जो आज तक हल नहीं हो सका। रेडक्लिफ की नाकस मनसूबाबंदी के बायस पाकिस्तान को कई मसाइल से दोचार होना पड़ा। Now, dawn of independence. The concept of independence has a great significance for the nations. Pakistan came into being as independent state on 14th August 1947, 27th Ramadan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh was the first Governor General of Pakistan.
सुबह आजादी, आजादी का तस्वर कौमों की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। 14 अगस्त 1947 यानी 1947 27 रमजानुल मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने।